Patriotic colors? Yes, as Pakistan usual? color. Pakistan. कैसे? Nice place? Well, it's all right. It's lovely. Can I get a tour? हाँ, why not? चलो. Yeah, these look interesting. Well, they all presented by some sheikh or the other. भाभी नहीं है सर? नहीं, she is in Karachi. अच्छा. For the बाकी winter? ये हाँ. No, she is coming in about 4-5 days. Right. हाँ. Right. The study looked really interesting. Study आ जाओ, देख लो. Study is good and the balcony is the best. हाँ जी, हमने इधर ही shoot करना है. The best fireworks view is from here. It's And lovely. the photography of the fireworks is also from the rooftop here, right over our head. Right. तो बहुत लोग इधर आना चाहते हैं fireworks देखने के New लिए. Year's Eve के लिए. तो हमेशा 30-40 लोग आ जाते हैं. लेकिन the roads get blocked at about 5-6 o'clock, so they have to be here at 6 o'clock. Right. And then sit till 12. So study? This is the study. Yes. Well, it's a small house, but this is my small study. Thank you for watching Dunya. Appreciate it. तो ये I noticed कुछ लिख रहे हैं आप. हाँ, I am writing on this. I've written, लेकिन मैंने सोचा कि ASEAN का कुछ ऐड करना है. Strategic relationship of India, ये देख रहे हैं. मैं आए? हाँ. तो ये लिख रहे हैं आप? Strategic relationship of India, Pakistan, ASEAN. हाँ. Mr. President, you're still publishing. आप कहीं publish करें अपने लिए? हाँ, ये नहीं उन्होंने मांगा हुआ है. They are going to have as a main article in their magazine. But who's they? ये Maybank है. This is the biggest bank of Malaysia. And top 10 banks वगैरह में है. उन्होंने they had called me for a talk also. So they asked me, उनकी magazine एक में निकाल रहे हैं तो उसकी lead story होगी. Proper, huh? Can't get the soldier out of the system. After World War II, countries, area orientation, historical orientation, and you come all the way to your recommendations. So ये is this a consultancy you're doing for them या कोई speech दे रहे हैं क्या कर रहे हैं? Speech दिया, उसके बाद उन्होंने article लिखवाने को कह दिया. So I said no, I am not charging anything now. अच्छा. I am not going through Harry Walker agency और ये जितने भी मेरी talks हैं, other than they have to pay for my air travel and रहना. रहना था यार, लंदन में रहना is my own house. So no problem. It's only the travel. बाकी I don't charge anything. तो you from the old school, हाँ? पहले लिखते हैं by hand, by pencil. हाँ. And फिर then you get it typed. Yes. Type खुद करते हैं? नहीं. किसी से करवाता हूँ. I'm not good at that. But handwritten, yes, everything I write in my own hand. बाकी मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा दूँ. This is my next book, by the way. हाँ. अच्छा, this is your next book. Yeah. Manuscript है. हाँ, बिल्कुल. What are you calling it? अब ये calling का मुझे. पाकिस्तान में अच्छे chapters. पाकिस्तान में passion. अच्छा, title आपके 3 हैं, हाँ? पाकिस्तान में passion, in the fire, पाकिस्तान मेरी जान. ये. मगर आप रख रहे हैं पाकिस्तान first. Probably. अच्छा, interesting. कब due कब है सर? ये ज़रा स्टोरी ख़त्म हो ना. थोड़ी स्टोरी चल रही है ना. कितनी स्टोरियाँ ख़त्म करेंगे? हाँ, ये अब क्या करें, अभी चल रहा है. ये इनको सज़ा मिले तो पता नहीं आगे पीपल्स पार्टी, इंटरिम गवर्नमेंट, नो इंटरिम गवर्नमेंट, इलेक्शन, ये सारे हो जाएं ज़रा. अनफोल्ड हो जाए. बाकी मैंने सारा लिखा हुआ है. जस्ट हैव टू ऐड समथिंग. नहीं, ये तो रेडी है सर. हाँ, ये एंटायरली. एंड मेरे हिसाब से इट्स अराउंड 45-50,000 वर्ड्स हो गए हैं इसके. I don't really know exactly. हाँ, जो लग रहा है. लेकिन ये चैप्टर्स हैं इसके. These are the chapters. With पाकिस्तान, मतलब कि क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान फर्स्ट, आपका नारा, डाउनवर्ड स्लाइड, नीचे, the year of change, ये क्या है? 99 आपका साल? जब मैं चला गया था बाहर. नहीं, 2009. अच्छा, तो ये आप शुरू करते हैं जिधर से आपने छोड़ा है. हाँ, अच्छा, 2006. My life abroad, this, ये जो चल रहा है. हाँ. Taking the plunge, ये क्या है? नहीं, that is going back. No. This was before 2013. Roger, ठीक है. Taking the plunge is going back to Pakistan 2013. जो वापस आप आए हैं. हाँ. मैं आपसे एयरपोर्ट पे मिला था. हाँ. याद है? हाँ. आपने बोस्की पहना हुआ था. बोस्की पहन के वापस आए थे. Good for you. No lesson learned. War against terrorism. No lesson learned क्या है? This is for the. कोई नहीं सीखा. Government. नवाज शरीफ के लिए खत लिखा. Yes. No lessons. कुछ भी नहीं सीखा. वो ही गवर्नेंस खराब कर रहे हैं. War against terrorism, of course. हाँ. ज़रब्याज़ वगैरह. हाँ, ज़रब्याज़. And then my view of
Where does Islam lie in Pakistan? उसके मेरे अपने कुछ मैंने views दिए हैं, which I had not. Very interesting. I'm very privileged. Thank you. Thank you. Well, तो जल साहब, if I may, कहीं the outdoor view is the best. हाँ, चलो. With your permission. हाँ. उधर कैमरा लगाएं. उधर लगा लो. ठीक. President General Pervez Musharraf in his study and in his element. General, आपका क्या प्लान है इस वक्त? I have to face the courts. करेंगे. कोर्ट्स तो फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि ये केसेस तो ऐसे नहीं ख़त्म होंगे, पेश होकर ही ख़त्म करेंगे उन्हें. उम्मीद यही है ना कि अब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं है और नवाज़ शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हुआ है. भाई ये दोनों ही थे, तो ऊपर से उनको कोर्ट्स में केसेस बना दिए उन्होंने. बाय द वे दिस ईयर, ये 2017 में यू बिन, मैं मैथ लगा रहा था इसकी, कैलकुलेट कर रहा था, यू बिन आउट ऑफ पावर एज लॉन्ग एज यू वर इन पावर. ये 9 साल यू वर इन पावर है ना, ऐसा ही है. और 9 साल आपका आउट ऑफ ये रिटायरमेंट जो है, पोस्ट प्रेसिडेंशियल रिटायरमेंट जो आपकी हो गई है. सो मुबारक हो. जनरल, माजरत के साथ इट सीम्स कि जब आप लश्कर तैयबा को कहते हैं कि आई सपोर्ट लश्कर तैयबा, दे लाइक मी टू, तो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है, जो टुक टुक करके हमने नॉर्मलाइज किया है, वॉर ऑन टेरर लड़ी है, रेपुटेशन अपनी सही की है, बाहर जाके लोगों को अपनी शहादतें दिखाई हैं, अपने कप्तान मेजरों की शक्लें दिखाई हैं, उनकी बेवाओं की वीडियोस दिखाई हैं. सवाल ये है कि डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू? एब्सोल्युटली द राइट टाइम. मैंने हर दफ़ा एक्सप्लेन किया है. देखो भाई, हमारी डिप्लोमेसी जो है वो गलत है. हमारी, हम जो डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं, कोई हमारी इज्जत है क्या इंटरनेशनली? आप जो कह रहे हैं जो हमने ये ठीक कर दिया, वो क्या ठीक कर दिया? आपकी इज्जत ही कोई नहीं है. बात ये, और वो उसको वो ऊपर से हमारे नेबर मोदी साहब हमारे चढ़े हुए हमारे सर के ऊपर, इंटरनेशनली हम आइसोलेट हुए में. बात ये है कि हमें डिप्लोमेसी, हम डिफेंसिव पैसिव डिप्लोमेसी एक होती है जो ये करते हैं सब ये लीडर्स जो हैं. अब लश्कर तैयबा है, इसको क्यों इंडिया कह रहा है टेररिस्ट? उन्होंने यूएन से डिक्लेयर करवा लिया टेररिस्ट. यूएस कह रहा है वो टेररिस्ट हैं. हम क्यों कहें? मतलब हम क्यों कहें? हमारे, उन्होंने क्या टेररिज्म किया भाई? अब तो यूएन ने भी कह दिया. देखें बात ये है, तो हम क्यों माने? वो गुलबशन यादव का मान रहे हैं कि भाई वो नेवी का कमांडर है. वो मान रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. वो मान रहे हैं कि वो जो ट्रेन में जो समझौता एक्सप्रेस को ब्लो अप किया गया था, सर्विंग मेजर था, उसको हमें दें आप. कोई नहीं मानता है. तो बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो पैसे में, हम तो लेट जाते हैं. नहीं, हम उसे, और यूएन का जहाँ तक ताल्लुक है जी, यूएन ने कहा हुआ है, तो यूएन ने तो कहा हुआ है प्लेबिसिट करवाओ, इलेक्शन करवाओ. मानता है इंडिया? कोई नहीं मानता. यूएन ने सब वोट डाल रहे हैं अगेंस्ट जेरूसलम की जो रिकग्निशन हुई है, सब कह रहे हैं. तो यूनाइटेड स्टेट्स मान रहा है? नहीं मान रहा. तो हम क्या हैं भाई? हम छोटे हैं. That is my emotional outburst on, because देखो देखो वजह बात ये है कि ये हम कहते हैं. एक मुझे, मैं वाकया पढ़ रहा था, एक रशियन KGB का सीनियर डायरेक्टर था, वो डिफेक्ट कर गया, इंग्लैंड चला गया, लंदन में ही गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल. एंड ये बड़ा फेमस केस है, कोई 15-20 साल पुराना. उसको उन्होंने, किसी ने आइसोटोप रेडियो एक्टिव इंजेक्ट करके दे फिनिश्ड हिम ऑफ. इन्वेस्टिगेशन सारे की इनके स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह, दे आइडेंटिफाइड इट वाज KGB हु डिड दिस. अब उन्होंने 1000 कहा KGB को, ये करो वो करो. कौन था ये? हु इज अलेक्जेंडर समथिंग? हु इज अलेक्जेंडर? वी डोंट नो. हु सेज ही? भाई ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी. अब मान जाते हैं. बंदा मरवाना जनरल साहब इज नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, इट इज अ प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ असैसिनेशन. नहीं, एवरीवन इज डूइंग इट, फॉर हेवन सेक. इजरायली मरवाते हैं. एवरीवन इज डूइंग दिस. अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे, तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है. तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे? हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया. हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे. डू यू हैव समवन इन माइंड? I have many in mind. बात ये है, this is the way of the world. ठीक है. Doing this. तो आप, जो मुझे समझ आ रही है जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि एज अ प्राउड पाकिस्तानी, एज अ प्रोएक्टिव डिप्लोमेट, अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए. थल्ले, जैसे पंजाबी में कहते हैं, थल्ले नहीं लगना चाहिए. थल्ले नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल. हैं? मगर जनरल साहब, इसकी एक इंटरनेशनल कॉस्ट है.
न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिस्ट, वो कहता है मुशर्रफ पागल हो गया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिलीव मी, मैं जब जाता हूँ यूएस, और मैं लास्ट टाइम जो गया था वो कोई 3 महीने 4 महीने पहले गया था सर, उससे पहले कोई 6-7 महीने पहले गया था मैं। सर, आई स्वेयर ऑन गॉड कि आपको मैं बताऊं कि अगर किसी ने कहा लश्कर तैयबा क्या है, वो अगर पूछते हैं वो हक्कानी ग्रुप और वो जो डॉक्टर अफरीदी उसके बारे में, सब उसके बारे में एक ने अगर कहा हो कि लश्कर तैयबा इंडियन इशू है ना, ये इंडियन इशू है। yes. मगर वो सर जब इंडिया फिर उसे प्रोपेल करता है ना अपनी लॉबी से, हम उसको काउंटर करें ना। लेट्स कंपेयर राहील टू कमर जावेद बाजवा साहब। आपने इन्होंने आपके नीचे सर्व किया है, आप जानते हैं इन्हें, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही एंड हाउ डू यू, आप कैसे कंपेयर करते हैं जनरल बाजवा को जनरल राहील से? नहीं, सर्व तो सबने किया हुआ है मेरे नीचे, दे हैव ऑल सर्व्ड अंडर मी। नहीं, बट डायरेक्टली अंडर योर कमांड कभी? नहीं, डायरेक्टली अंडर कमांड किसी ब्रिगेड में, याद नहीं है। वहाँ ये ओकाड़ा में जीओसी जब मैं था उस वक्त ये वहाँ ओकाड़ा में मेजर थे। बीएम थे? बीएम थे, हाँ। So that is all. और BM वो राहील was also a BM. Right. So this is all that I know. Now हर BM को आदमी जानता नहीं है when you're a general. But राहील के साथ yes, because of his brother. ऐसा ही है. I had a relationship. Personal relationship थी. Personal, family, his family, his wife, children. तो उसके बाद मैंने उसको लाहौर में GOC भेजा. Whenever I used to go to Lahore, he was the one who was receiving me and then calling me for tea to his house, etc. These common फैमिली रिलेशनशिप राइट वो थी, इनके साथ मेरी नहीं रही है ये, बट ऑब्वियसली ही नोज मी। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया सर। नहीं, मैं तो बड़ा ब्लंट डिप्लोमेसी में बिलीव करता हूँ। राइट। ये जो IMCTC है, जनरल राहील उसके कमांडर इन चीफ हैं, मोहम्मद बिन सलमान उसके पेट्रन हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मगर एक ब्लेम है कि ये जो ब्लॉक है 41 ममालिक का, ये एंटी शिया, एंटी ईरान ब्लॉक है और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस जंग में पार्टिजान होने का। क्या असेसमेंट है आपकी? ईरान को कैसे देखते हैं, सऊदी को कैसे देखते हैं? इस सही बात है, ये दैट इज़ करेक्ट कि हम कोई ऐसी चीज़ सेंसिटिव बहुत है हमारे लिए जहाँ ये सेक्टेरियन स्ट्राइक बिटवीन शिया सुन्नी हो। लेकिन अब मैं कहूँगा कि ये जो है, आई मीन क्वाइट क्लियरली, ये जो 41 कंट्रीज़ हैं कह जो रहे हैं ऑस्टेंसिवली, तो वो टू फाइट टेररिज्म। जब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अब टेररिज्म क्या है? इफ़ आई वाज देयर आई वुड हैव ट्राइड टू डिफाइन किस चीज़ को टेररिज्म कह रहे हैं। मतलब यहाँ तो इंडिया की वर्जन ली जाए तो वो जो कश्मीर में हो रहा है सारी टेररिज्म है, तो हमें मारना चाहिए उधर जाकर। नो सर, हम उसे टेररिज्म नहीं समझ रहे हैं। तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन व्हाट इज़ टेररिज्म और किस चीज़ से हम डील कर रहे हैं। उसके बाद ना जो आप कह रहे हैं शिया सुन्नी वाला मामला आता है, वो जब मामला आता है अगर यही ब्लॉक शिया सुन्नी में इन्वॉल्व होता है, यमन में या इराक़ में या सीरिया वगैरह में, ना वो फिर और बात है। उधर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की काबिलियत होती, और मैं वेरी प्राउडली मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ज़माने में हम एक मीडिएटरी रोल प्ले करते बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, इनको रिकनसाइल करवाते। और कोशिश तो की थी, नवाज शरीफ जनरल राहील को लेके गए थे रियाद और फिर तेहरान लेके गए थे। मतलब एक जहाँ जब पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्टेचर ना हो ना, इंटरनेशनली रीजनली हम कुछ भी ना हो, लोग हमें लो समझ रहे हो और हमारी बुरी हालत हो, तबाही की तरफ जा रहे हो, तो कोई सुनता नहीं है। देखें, सुनता जब आप खुद डोमेस्टिकली इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपकी बातें सब सुनते हैं। अब टर्की ने देखे वो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एर्दोआन वो कर रहे हैं, जीता बना हुआ है सर। हाँ, हम हालांकि टर्की हमसे छोटा है तकरीबन हर तरीके से। मेरे ज़माने में वी यूज्ड टू बी इन द लीड रोल, वी यूज्ड टू बी लीड रोल इन बोस्निया, वी यूज्ड टू बी लीड रोल इन मैनी प्लेसेस, इवन ऑन पैलेस्टाइन, रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, उसमें भी मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू कर किया था। पाकिस्तान वाज इन द लीड रोल। आई हैव अ क्वेश्चन, आप जाके देते सेनेट को 1 घंटा ब्रीफिंग और 3 घंटा Q&A इफ यू वर स्टिल इन पावर और इफ यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म? देखो, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, डिपेंड्स आजकल के एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें यस जाना चाहिए, ठीक है। खामा-खे में लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी एक कन्फ्रंटेशन हुई हुई है एंड ऑल्सो आर्मी, तो उसको अगर कोई क्लैरिफाई करने चीफ गया है, एंड सेनेट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कंट्री,
जनरल, जब आप रिटायर हो जाते हो, आप अगर गोल्फ जाके खेल सकते हैं और ब्रिज खेल सकते हैं, ठीक है, यू डू पॉलिटिक्स, ठीक है, आपका हक है, आप कर सकते हैं, आप रहे में आप, मगर क्या ये ट्रेंड अच्छा है कि आप एक प्राइवेट नौकरी करें? वो ठीक है, आप जैसे भी करें, बट डू यू थिंक ये जेब देता है फर्स्ट ऑफिसर को या 3 स्टार ऑफिसर को कि चले, मैं कहता हूँ कि पाशा साहब इधर छुट्टियाँ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जहीर साहब भी इधर छुट्टियाँ कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, आई एग्री विद योर असेसमेंट फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, मगर इधर आके कंसल्टेंसीज करना, नौकरियाँ लेना, इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है कि ये जेब नहीं देता इतने सीनियर अफसर को, और दूसरा ये नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है। जब आप बुर्जुल अरब में बैठते हो, किसी के लिए काम कर रहे होते हो, तो आपका बॉस होता है, आपका बॉस होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी। डू यू एग्री कि ये क्या नया ट्रेंड चला है? यू लाइक दिस ट्रेंड? नौयत मुझे नहीं मालूम ना, अभी उनकी क्या नौकरियां कर रहे हैं और कैसे नहीं मालूम जनरल साहब? कम ऑन, यू आर सिटिंग एट बर्ड्स आई व्यू है आपका। ये जो दोनों की बात आप कर रहे हैं, इनमें से आई मीन दे हैव नेवर मेट मी, ये मेरे पास कभी भी नहीं आए कॉल ऑन करने या ऐसे बात करने, हालांकि इन दोनों के साथ मेरे रिलेशंस वर वेरी गुड, स्पेशली ज़हीर के साथ। आई डोंट थिंक ये कंसल्टेंसी वगैरह बातें बहुत हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये बाकी लोग कंसल्टेंसी को यहाँ कर रहे हैं। आई डोंट नो, बल्कि मोर आई डोंट थिंक दे आर डूइंग दैट अदर दैन राहील हु इज़ एम्प्लॉयड वहाँ, उनके अलावा जो आपने नाम लिए हैं, आई डोंट, लोग बातें कर रहे हैं, आई डोंट थिंक से कोई ऐसी कंसल्टेंसी वगैरह इन्होंने यहाँ कर रहे हैं। राहील का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, अब अगर टेररिज्म को डिफ़ीट करना है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू फ्रैंकली, कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म को डिफ़ीट करना है तो वी आर टॉकिंग ऑफ डिफ़ीटिंग दाइश, अलकायदा, TTP ऑफ पाकिस्तान, लश्कर जंगवी ऑफ पाकिस्तान, बोको हराम ऑफ नाइजीरिया, इनको मारना। नाउ ये तो सारे टेररिस्ट हैं, बट द मोमेंट इफ़ यू इक्वेट टेररिज्म with dealing with Iraq and Syria and Yemen, now this is frankly not terrorism, this is ethno-political strife. So we have to be clear on what our task is.